Hello and welcome to Gyananjali. My name is Punita Sharma and I would like to welcome you all to Gyananjali's first live show on Safe Soil. Before we commence, I would like to share a quote by Stephen Hawkins. He said, "If we discover a complete theory, it should be in time, understandable, in broad principles by everyone." So, to rephrase his quote, discussion is very important. And if we are open for discussions, we can implement our ideas, our plans, and execute them well. So, to go forward in this session, I would like to introduce the speakers for the day. We have six speakers. Our very first speaker is Ms. Surpreet Kaur. She is from Pune. She is an academic manager in a private school and she belongs to science stream. She believes in the theory of speak up if you want to bring a change in the world. Then we have Mr. Kirti Prasun VR. He is a senior manager in an MNC, and apart from that, he is also a drug designer. He believes in being a humanitarian, and he likes to improve his team and people around him. He also firmly believes in victory loves preparation. Then we have Punita Sharma. She is a research scientist and she has joined us from New Delhi. She is working on insects and she is trying to improve the process of composting. And she thinks that science should not remain confined to the science labs or research labs. They should be able to reach out to the common people as well so that we can bring science into our daily lives. Then we have Mr. Devesh Tiwari. He has joined us from Chitrakoot, Uttar Pradesh. He is an inspector in soil conservation department. He would be sharing his insight on how the government is trying to help the ordinary people to conserve soil and to improve the quality of soil. Then we have Miss Sangeeta Jakhwal. She is from New Delhi and she also belongs to the science stream and she believes in the theory of live and let live. And the last speaker for the day is Mr. Sachin Mishra. Uh, he is a person of simple living and high thinking. So that's all for the introduction of the speakers that we have today, and now we would like to commence the discussion. So before we start the discussion, would you like to share anything from your side? Good evening, everyone. Ma'am, I just want to thank you, first of all, for making me part of this initiative. And I don't know whether I can contribute to what extent I can contribute in this movement, but definitely I am taking it as a learning experience. And with all um, people here in this gathering, I'm going to take away something. So that's what with that motive, I have joined this Okay. meeting today. Thank you. Thank you for joining us. Yes. As rightfully said, thank you, Manisha, for taking up such a great responsibility, putting people together, trying to convey a message to the society. I mean, in fact, nobody is expecting you to do so, but then still you feel it that it is your responsibility to do. Makes you a different human being from. I mean, keeps you apart from the crowd. So it's pleasure to be a part of such an initiative. So thank you for giving me that opportunity.
Good Okay. evening, everyone. Manisha ma'am, thank you very much. Frankly speaking, before I was part of this initiative, I did not know that I could make videos, I could do voiceover or something of that sort. So you have given me an opportunity to learn and to explore myself more. And thank you to make me part of this initiative. Hope we go a long way and bring some constructive change. Thank you. Yes, Okay. I also Great. feel that this is a great platform for all of us and for the people who will watch and for the people who will join. So, might be we will be able to share our views on soil conservation and how we can improve the soil quality. Like these days, we know that it's degrading day by day. So, I hope that we can learn from each other and also we can help the society from that. So, it's a great initiative by you, and I really praise that. Thank you. Thank you. Okay. All right. So, should we start our discussion? And here I have come with my small baby so that she can also learn and she can also take part in this. Oh, so we have got Vedika also. Wonderful. Okay, great. All right. To begin our discussion, I would like to ask the first question from Miss Punita. Uh, I would like to ask her that what are the scientists doing in the current scenario to bring change in the soil conservation? What are they doing? What are the steps that are being taken to improve the quality of the soil? Yes, Marisha. These days, actually, we all know the problem, but many of the scientists are working to improve these scenario. But somehow, those scientific findings and scientific improvements are not reaching the common man. This is because many of the people don't know how to reach out to those. Like there are many institutes in Indian government, like IRI, as you know, that Indian Council, and these really work. The scientists really work hard, and some of the scientists I have found really. I'm not actually the agriculturalist, but I know because I have interest in that. So they are also performing some of these mela kind of thing, Krishi mela. They are arranging and people are actually going and there also new improvements that are coming they are showing off to people. So I think every people and all of us should take part in that so that we can learn more and more techniques. Some of the techniques I know is that there are different aspects like some are working on the machinery part so that we can uh, take those machinery and we can improve soil. Like there are some stubble burning, we know that that's a problem. So to improve that, uh, first of all, some machines are coming in which there is no need to burn the stubble. In fact, they sow the seeds without burning the stubble, and you can till the land, and then again the stubbles that are there, they are remaining there on the land, and then eventually they are decomposing. So these kind of machinery are there, so we can Mhm. take use of that. Rotavators are also there, so you need not do the stubble burning, so you can use that. Secondly, to improve that, some of the scientists are working on microbes. There are really helpful microbes that are actually degrading from the soil. That is what happening to the soil right now. So they are making some of the mixtures of those microorganisms, and one of the scientists from IARI, I don't remember his name right now, but he's working. He has mixed those microbes, and he has made some bio decomposer, OWDC, with this name that is coming on the internet. And also that can be used again and again and again. Like if one bottle is 40-50 rupees, then you can make it with the help of some these oil cakes or a good jaggery that we say. With that you can make it with 200 liters and then you can distribute it to others. But
one of the thing is that you have to put it in the like if farmers are making it on the ground, like they are making in the fields, then there is no shady part in there. So they are using once, and that's then they are again buying that. So it's a part that if we can make out some room for that in home, or some where there is lesser temperature, or in like winters there is normal temperature, then we can maintain it, and we can give it to anybody, like they can proliferate it, and it can be used again many years, till many years. So that can be used, and that is used for decomposing the stubble. Okay. These kind of solutions are there. And as you know that I am working on insects, so I have also, like I have worked on mosquitoes most of the time, how we can improve mosquitoes so that they cannot this is kind of genetic engineering, so that they do not cause you disease. Okay, so there are during that learning on insects, I have found that there are some insects that can improve decomposition. Like in normal decomposition, the nutrients are not that high, but when those these I've seen one of the videos of the ma'am where she is simply decomposing. So but there are some insects are also there, like earthworms. We already know these are farmers friend. So there are also varieties of these earthworms which are better decomposers and which are not. Some of the Australian species are there, Asina fetida, that you can use, and that is better because it can live at higher temperatures, and like till 55 degree, 50 degree, it can survive. So it is not dying like the Indian variety, and it is giving the quality, equal quality, like uh, our earthworms are giving. Also, there are other insects people are not knowing. Everybody knows about these earthworms, but nobody knows like there are black soldier fly. This this insect is actually being used since few years. So that is people are not knowing this. So its larva actually can eat a lot of this waste material, uh, more than even earthworms. And even the quality of these compost is very much higher. Like in my personal experience, like it is 10 to 20 times better in NPK value than these earthworms compost. So these are the kind of insects, and also the machinery that we can use, and also the microbial solutions that the people are coming with. So I think Okay. that these solutions can be reached out with the various, like if we can go to field, if some mela or this kind of expos are planned, so we can go and we can check out. Okay. All right. So, So can you please just summarize whatever you have said in Hindi as well? Because uh, we need to reach out to the yes, yes, masses. हाँ हाँ, श्योर। ये एक्चुअली हमें मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही लैंग्वेजेस में हमें बोलना चाहिए, क्योंकि देर आर पीपल जो इनको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस हैं। जैसे कि कुछ मशीनरी के रूप में आ रहे हैं सामने, कुछ मशीनरी है रोटावेटर या एक विदाउट टिल, हमें मतलब उसको स्टबल को जो खरपतवार या जो इसके गेहूं की कटाई या अपने बाजरे या जौ की कटाई या फिर आपकी पैडी जो है धान की कटाई के बाद जो बचता है उसको स्टबल बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसको डिकम्पोज करने के लिए भी कुछ चीजें हैं। मशीनरी भी ऐसी है कि जिसको उसको जलाए बिना, जलाने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो सॉइल को भी खराब करता है क्योंकि उसके माइक्रोब्स मर जाते हैं। जो अच्छे माइक्रोब्स जो उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो मर जाते हैं जलाते टाइम, तो उसके अंदर कुछ ज्यादा बचता नहीं है। फिर हमें एनपीके या डीएपी जो भी आप सिंथेटिक जो भी केमिकल्स डालते हैं उसके अंदर वो डाला जाता है। तो अगर हम वो स्टबल बर्निंग ना करें, वो जलाएं ना,
उसकी जगह हमें 2-3 तरह के सॉल्यूशंस हैं, जैसे मशीनरी हम नई तकनीक यूज कर सकते हैं, या फिर हम जो है माइक्रो जो अपने छोटे छोटे जीवाणु हैं उसके कुछ सॉल्यूशंस बनाए हैं सरकार ने या साइंटिस्ट ने, वो हमें ऑनलाइन आप अगर ढूंढोगे अमेजोन वगैरह पे भी अवेलेबल है, वहां वहां से भी ले सकते हैं, OWDC करके नाम से आता है। और लेकिन कुछ लोग हैं उसको मतलब मुझे ऐसे लगता है वो साइंटिस्ट, मैंने खुद उनसे पूछा था कि मैं कहाँ से लूं, तो उन्होंने मुझे कुछ किन्हीं का नंबर दिया था कि इनको मैं जानता हूँ और वो अच्छा देते हैं। अभी उन्होंने कुछ सालों से, शायद 1-2 साल से डिसकंटिन्यू कर दिया, बट और लोग उसको प्रोलिफरेट कर रहे हैं और शायद वो भी अपनी लैब्स में और भी इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं। शायद हो सकता है कुछ और सॉल्यूशंस आए। उसको गुड़ में घोल के एक 40-50 रुपए की डिब्बी आती है, और जिसमें कि हम पोस्टेज चार्जेस लगाएं तो 150 रुपए की आ जाती है ना, टोटल मिला के। और वो 150 के करीब की आके, और आप उसको 200 लीटर के ड्राम में 2 किलो गुड़ डाल के और उसको डाल के 1 हफ्ता रख के, मैंने 2-3 दिन में ही मेरा तो माइक्रोबियल वो सॉल्यूशन तैयार हो गया था। तो वो आप फिर स्टबल के लिए यूज कर सकते हो, उसके ऊपर छिड़काव करके, और या फिर उसकी कटाई करके एक जगह इकट्ठा करके और फिर उसके ऊपर डाल सकते हो। तो वो स्टबल जो है डिकम्पोज हो जाएगा और आप उसी को खेत में छोड़ सकते हो, वो न्यूट्रिएंट की तरह काम करेगा। आपके माइक्रोब्स भी नहीं मरेंगे जो जमीन में थे, जो जलाने से खत्म हो जाते थे। तीसरे तरह का सॉल्यूशन है इंसेक्ट्स, जिस पे मैं काम करती हूँ क्योंकि वो मेरा प्रायोरिटी एरिया है, तो उसके बारे में बता सकती हूँ कि कुछ अर्थवर्म्स हैं, इंडियन वैरायटी भी है जो लंबे लंबे हमें दिखते थे केचुए, उसके अलावा एक ऑस्ट्रेलियन वैरायटी भी आती है जो छोटा होता है, थोड़ा सा ज्यादा लाल होता है, और वो अच्छी जैसे नॉर्थ इंडिया की कंडीशंस है कि ज्यादा सर्दी ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस कंडीशन में भी वो सरवाइव करता है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। असीना फटीडा करके है, और बहुत सारे डिकम्पोजर जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उनके पास अवेलेबल भी है, वो ले सकते हैं, उससे डिकम्पोज कर सकते हैं। अभी आजकल जो है एक काली मक्खी नाम से, ब्लैक सोल्जर फ्लाई उसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है, उसके लार्वे भी बहुत तेजी से जो है वेस्ट को खाते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका उससे जो कंपोस्ट बनता है वो 10 से 20 टाइम ज्यादा, मतलब उसके अंदर एनपीके वैल्यू है जो मैंने टेस्ट कराई है, एज कम्पेयर टू वर्मी कंपोस्ट से भी उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि लोगों के पास इसकी नॉलेज नहीं है, तो उनको लगेगा कि पता नहीं क्या, मान लो मार्केट में भी अगर वो प्रोडक्ट आता है तो उनको लगेगा, मतलब वो उसको उसी प्राइस पे लेना चाहेंगे जैसे वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आपको 20-30 रुपए किलो मिल सकता है, लेकिन अगर आप वैल्यू या उसकी क्वालिटी वाइज देखेंगे तो वो उससे 10 गुना बेटर है। तो वो चीजें लोगों को समझनी पड़ेंगी। तो वो हम ये नई अभी तकनीक आ रही है, लोग यूज करना स्टार्ट किए हैं अभी इंडिया में कुछ सालों से, 2-3 साल से। लोगों को ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है, बट हाँ इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो आपके क्या सजेशंस हैं, हम ज्यादातर लोगों तक कैसे इस इंफॉर्मेशन को, इस जानकारी को कैसे फैला सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? देखिए एक्चुअली क्या है कि लोगों को, मुझे ऐसा लगता है मॉल में घूमने से ज्यादा जो अर्बन एरियाज हैं उनमें खासकर बच्चों को ऐसी जगह लेके जाओ जहां उनको कुछ नॉलेज इसके बारे में मिले। ठीक है, हम आज आपको पता है कि गूगल पे जो सर्च करते हैं वही हमारे सामने आता है। अगर हम फैशन की चीजें ढूंढेंगे फैशन आएगा। अगर हम उन्हीं बच्चों के सामने अगर हम सर्च करते हैं कि हम कैसे सॉइल को इम्प्रूव करें, कैसे उसको ध्यान दें, अपने बच्चों को उसके लिए ट्रेन करें धीरे धीरे, उनके लिए वो ट्रेनिंग भी नहीं, उनके लिए खेल है एक्चुअली, तो उनको शायद मजा भी आता है वो चीज करने के लिए, वो कर सकते हैं। और साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं तो जैसे हम मॉल में जाते हैं वैसे हमें या तो पुस्तक मेला जो होता है उसमें जाना चाहिए, या साइंस के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के मेले लगते हैं साल में, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनमें हमें जाना चाहिए, एक्सपोज में जाना चाहिए। वहां पे क्या होता है, नई नई जो भी तकनीक आ रही होती है, सब अपने अपने स्टॉल लगाते हैं और उसको आप देख समझ सकते हैं अच्छे से, वो सब बताते हैं उसके बारे में।
उसके बारे में नॉलेज देते हैं, और अगर आप जाएंगे ही नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें प्लान करना चाहिए कि हाँ वहां जाएं, और लोगों को, मतलब गांव के लोगों को भी बताना चाहिए कि हाँ इस तरह का एक्सपोज होते हैं, इस तरह के मेले अरेंज होते हैं जहाँ आप जाएं, और मतलब नई तकनीक वहां से आप सीख सकते हैं। Mhm. Because if I talk about the fairs, then I think that the only fair that we are acquainted of is the trade fair that is held in November. It Yes. starts from 14th of November in Delhi. That is the only fair, and apart from Yes. that, then I know about Suraj Kund Mela. तो मुझे ऐसे लगता है कि इसमें हम्म। सरकार का भी एक बड़ा रोल है कि वो इस तरह का की जागरूकता को फैलाने की कोशिश करें और बताएं कि हम कैसे अपने बच्चों को इस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम अपने बच्चों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेंगे तो उनके लिए एक आदत बन जाएगी कि हमको पेड़ यस। लगाना है। सिर्फ लगाना ही नहीं है, फिर उसको देखना भी है, उसकी देखभाल भी करनी है कि वो ग्रो कर रहा है सही से, उसको वो न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर ये एक साइकिल की तरह बन जाए तो slowly and gradually we would definitely see a change and things will improve. This is what I believe. Thank you very much, Dr. Punita, for your insight. So, my next question is Thank you. to Ms. Sangeeta Jakhwal. Ma'am, we are talking about the young generation, the youth, the children, and we are the youngest nation in the world. So, how do you think we can involve them, and how do you think we can bring them on board to bring a change in regard to soil conservation? गुड इवनिंग एवरीवन। अभी जैसे पुनीता मैम ने कहा कि बच्चों को जो हम दिखाते हैं, जो वो वही सीखते हैं। हम आजकल कहते हैं कि यूथ में प्रॉब्लम है, बच्चों में प्रॉब्लम है, मगर ये गलत चीज़ है। प्रॉब्लम एक्चुअली उनसे जो एक जनरेशन या 2 जनरेशन ऊपर है उनमें है। हम कहते हैं कि हर वक्त बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में भी पूरे दिन मोबाइल फ़ोन ही है। तो जो बच्चे देखते हैं, बच्चे वही कॉपी करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हैबिट डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स के अंदर बचपन से जो हैबिट्स डेवलप की जाएं वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चों के अंदर बचपन से ही एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की हैबिट डेवलप करें तो ही जाके कोई चेंज लार्ज स्केल पे आ पाएगा। क्योंकि एक बार जब माइंडसेट हो जाता है, उसके बाद इंसान जब अपनी नौकरी में और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, बिजी हो जाता है, तो उसके पास टाइम भी कम होता है इन सब चीज़ों को शुरू करने का या फिर कुछ अलग से करने का। लेकिन अगर बचपन से ही हमें आदत हो कि पानी कैसे बचाना है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, बिजली कैसे बचानी है, तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। मैं आज की अगर बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्रैकर्स बिल्कुल भी जलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके सिलेबस में, उनके करिकुलम में ये मेंशन किया होता है कि क्रैकर्स दे कॉज एयर पोल्यूशन। उसी तरीके से अगर हम करिकुलम और सिलेबस में ये सब चीज़ें डालें जो सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड हों, तो ऑटोमेटिकली हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा। अभी मैम ने वेदिका को अपने साथ लेके आए दिखाने के लिए। ऐसे ही जो भी प्रोग्राम में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, अगर हम बच्चों से उस काम के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं स्कूल खुलने के बाद 1 जुलाई से द स्कूल इज़ रीओपनिंग, मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब भी मौका मिलेगा मैं उनसे ये बात करने वाली हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-3 बच्चे भी अगर शुरू करेंगे और उनको देख के फिर अगर और शुरू करेंगे तो हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। अभी पुनीता मैम ने बहुत सही बात की कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो है, मॉल्स, फाइन, कमर्शलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म जो है, ये सब इतना ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो गया है कि जो नेचुरल है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हम उसको भूलते जा रहे हैं। मैम ने बिल्कुल ठीक बोला कि बच्चों को ऐसी जगहों पे ले जाना ज़रूरी है जो नेचुरल है, ताकि बच्चे समझे कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। मॉल होना हो चल जाएगा, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स होना हो चल जाएंगे, लेकिन अगर खेत नहीं रहेंगे तो हम में से कुछ नहीं रहने वाला। So I think in order to make the students do something or make the youth do something, it's we who need to put in the efforts first. क्योंकि अगर हम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो करेंगे ही करेंगे। 2 साल का बच्चा
कोविड के दौरान मैंने देखा है कि घर से बाहर निकलता है तो पहले बोलता है मास्क, क्योंकि उसने 1 साल की उम्र से ही मास्क पहने हुए देखा है अपने पेरेंट्स को और अपने आसपास के सारे लोगों को। उनको मास्क पहनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, एज कम्पेयर टू 40-50 साल की उम्र के इंसान को मास्क पहनाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन ये छोटे बच्चे, क्योंकि उनको आदत ही वो ऐसी पड़ी है, सो आई थिंक हैबिट और अवेयरनेस डेवलप करनी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हम लोग ही कर सकते हैं, और हम लोग कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे सीख ही जाएंगे। Okay. Okay. So you mean to say that we need to set examples, yeah? Yes, yes, Only then we can yes, carry it forward. Okay. yes, All right. yes, तो हम yes, अपने एग्जाम्पल्स के साथ में अपने बच्चों को और अपनी जो जनरेशन्स टू कम है और जनरेशन्स जो अभी हमारे साथ में है, यंग जनरेशन, उनको हम जो करेंगे वो हमको फॉलो करेंगे, ये बिल्कुल सही है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये बहुत एक्सपीरियंस भी किया है, क्योंकि मेरे पास भी 4 साल का एक बच्चा है, और अभी जो हम करते हैं वो भी वही सेम काम करता है। ही फॉलोज अस because we are the best examples for him. So I think that yes, we need to take it forward. यहाँ तक कि अभी दुबई में एक मेरी कलीग थी, मेरी फ्रेंड है, वो मेघा गुलाटी उनका नाम है। उन्होंने जब इसके बारे में बात की, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, उन्होंने अपनी प्रिंसिपल से शेयर किया, और उनकी प्रिंसिपल ने जब स्कूल के अंदर एज अ कैंपेन इस सॉइल कंजर्वेशन को चलाया, तो शी रिपोर्टेड बैक टू मी कि बच्चों ने बहुत ही एंथुजियास्टिकली उसमें पार्टिसिपेट किया। वो अपने पेरेंट्स के साथ में जा कर के शेयर कर रहे हैं, उन्होंने छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की और अपनी क्लास टीचर्स के साथ में उसको शेयर भी किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम इतने छोटे लेवल से उनको खेती, पेड़ लगाना, उनको संभालना सिखा देंगे, तो वो उनकी हैबिट के अंदर आ जाएगा, उनकी आदत बन जाएगी। और जैसे अभी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, उनको लगेगा कि ये भी हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है, जिसको हम मिस नहीं कर सकते हैं, एंड वी नीड टू डू इट। तो लेट आई एम होपिंग कि ये अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा और सब लोग इसमें और एक कदम आगे बढ़ाएंगे। So, coming back to the very main essence of soil conservation, I would like to pose a question to Mr. Kirti Prasun. Sir, uh, how can we improve the rotational farming, and how can we uh, take it to the farmers of the country? What are your suggestions? See, overall, on the context of soil conservation, right? I mean, when we look at this aspect, I mean, every time we talk about bringing some change, okay? So, what is that change actually that we want to bring? I mean, that should add value to soil conservation. I mean, Right. mostly it's marketing, okay? Who are our target customers? And where is the change that we need to bring in? I mean, if you go ahead and check out the total population, the overall population of a country, or maybe the overall population of the planet, what percentage of population actually connects to the soil? What percentage of the population actually connects to the soil? Not everybody. I mean, I don't connect to the soil much because I work in a different environment, and only farmers, or maybe people who work in forest department, or maybe who are working in horticulture department, I mean, who are connected to soil, right? Those are the people who can make a major impact. So we need to understand that first, and then bringing about a change in attitude about the younger generation or the next generation or our generation. I strongly believe that every generation has its own responsibilities, and we should give them space to think and bring their own attitude. I mean, we cannot inculcate an attitude in them. Okay, I mean, we may bring in some habits. Definitely, yes, I agree to what the other speakers also spoke. I mean, to certain extent, we can bring in some habit. मेरे पापा मम्मी ने भी कुछ ऐसे हैबिट्स मुझ में डाले थे जो अभी मैं फॉलो नहीं करता, क्योंकि मीन दे आर आउटडेटेड. When what I feel is now there is a change that needs. So what I strongly feel is my generation needs to bring value to my generation and help the next generation to think wisely, so that they bring a proper change that is that is rightfully matching to their time. Okay, so they need to start thinking in that direction. First thing, हम जो करते हैं
हमें देख के हमारा नेक्स्ट जनरेशन उस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है. So हम अभी what can we do? How much can we relate ourselves to soil? I mean, what population? I mean, if we are in Chennai, if we are in Delhi, or if we are in any other location or any other part of the planet, what percentage of the population are we connecting with the soil? I mean, कितने लोग जाके soil से कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ पा रहे हैं. हम लोग rarely we go out, buy some vegetables, get that, and then we put our garbage. Now we have gained certain education in ourselves that we at least put some recyclable and non-recyclable garbage separately and give it to the garbage man. But I think 5 years back we were not even doing that. We were just mixing everything and giving. So ultimately, what I feel is this education, whatever we call awareness or whatever, that should happen to the people or the population which are directly connecting to the soil. If me, you, and the rest of the speakers, or maybe anybody who don't connect to the soil, still can bring up a change by doing one thing. We can connect to the people who are connecting to the soil. We can connect with them, talk to them, help them understand. Like what I see is the major population who are connecting to the soil, they are not educated, or otherwise they are not being made aware of what things are happening around. I mean, maybe like I'm basically hailing from a farmer's family, so I know what happens around my locality. Okay, not many people know like what kind of yield they should take from their soil, and even if they go to the horticulture department or any government department, मान के चलो कि I mean it's corrupt everywhere. I mean, you pay money and they give you some subsidies. You pay money and whatever outdated menus they have, they are giving, they are selling. They are just marketing anything that makes money for them. I mean, you go to any rural portion of the country and you can buy bionutrients which are not even bionutrients, and there are some chemicals they are selling in the name of bionutrients, and you feel bad about that. But at least when like us, I mean, I understand, like Punita madam understands, or anybody else who understand what bionutrients are, what is a vermicompost are. If we can spare one single day of a month, go to a farmer, reach out to him, maybe known or unknown, a stranger or anything, go to them and give them an idea like आपका जो soil है इसको ले जाके आप टेस्ट करा सकते हैं. What is the best yield that you can get into your soil? You can try that. And the other part is, I mean, हमारे जो पूर्वज थे, I mean our forefathers, they never understood the crop rotation. Okay, I would like to bring this up, the discussion on crop rotation. Why crop rotation? I mean, हर सीजन में एक सीजन में एक तरह का क्रॉप उगता है. I mean, रेनी सीजन में एक तरह का क्रॉप उगता है, समर सीजन में एक तरह का क्रॉप उगता है, विंटर सीजन में एक तरह का क्रॉप उगता है. Considering this as a concept, our forefathers used to do agriculture. I mean, in rainy season they used to do paddy, in summer they used to do sugarcane or something like that, whichever matches to that particular season. They used to change the crop. But then scientifically it is proven that by doing this, what happens is ये जो सॉइल कंजर्वेशन का एक्चुअल सेंस जो है एक क्रॉप रोटेशन से बनता है. What happens? It retains the nutrition in the soil and it will not allow the pesticides or maybe rodents to complete their cycles continuously and gain a resistance over the pesticides. And also it helps the soil, give it a break to not to consume one particular part of nutrition, and also give it time to replenish that nutrition, and whichever is in abundant that can be consumed. So ये क्रॉप रोटेशन का जो है ये हर एरिया में सेम नहीं फॉलो होता. कुछ एरिया ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे समर सीजन में कोई क्रॉप आता ही नहीं है. So in those cases you can use livestock to graze their land. Like when the livestock graze their land, automatically they walk in their land, they litter the organic food whatever they are eating in the same land. So that also helps to fertilize those particular land, and eventually the next season when they want to sow something and harvest, it will definitely produce a better yield. So what I strongly feel is crop rotation is something that can easily be convinced to the farmers. We can make them understand like what is the importance of crop rotation and what kind of crops that they can try in their fields, and if their field is not fit enough to
try multiple crops at multiple season. If some lands might be fit enough to accommodate all the multiple crops on across through the year, like wetlands, they can use some 3 or 4 varieties of crops in the same field and try harvesting it at a different time period. Okay, even there are multiple varieties of doing crop rotation. Okay, so if we understand what crop rotation is and how it can benefit a farmer, and one of us, if all of us or one of us, it doesn't mean, it does, it doesn't matter. But then, if we take an initiative of spending 1 hour's time going or connecting with a farmer, maybe known or unknown, a stranger, whomsoever it may be, sitting with him for a chai and spending some half an hour or 1 hour, helping him understand like what is crop rotation and how he can conserve the soil, and then help him to get in touch with the respective scientists or laboratories who can help them understand in their particular land what kind of yields can happen. What happens, that builds your relationship with him. And if he tries it out and if he succeeds, automatically the word of mouth spreads, and in that geography, people will start following him. And without your knowledge, you are making an impact to a greater population, and there the soil conservation is actually happening. Okay, that's an approach that I actually look forward. And when you are doing this right, the next generation, maybe your kid or maybe your brother or maybe your son, whomsoever it may be, they will be actually looking at the next level. What can they do? Now what we are trying to do is whatever can be done at this point of time, we don't want to do, and we want our kids to do it. So we are trying to train them and making it a habit for them to do it. No, that's not happening, because they should be doing more than what we are doing today. And they should be doing something better than what we can even think today. We don't know what is better, right? हमारे पापा मम्मी ने जो हमारे लिए सोचा था, हम आज सोचते हैं कि हम उससे बेहतर सोच सकते हैं हमारे बच्चों के लिए. Correct? So definitely, Correct. yes, it means that from one generation to the other generation, they are more intelligent than us. So what we need to do is we need to make way for them to think in this direction. That's all that we need to do. We need not bring in a habit. We need to bring in hygiene. This is a hygiene that every individual should have. This is an academics that every textbook should have. Like, yes, I need to be a part-time farmer, whatever it may be. I might be a corporate doctor or a corporate consultant or corporate software engineer, whomsoever it may be. If he or she can be a 1 hour farmer every day and he can do farming in this garden, there is nothing like it. Whatever his findings may impact at a bigger level, may impact at a broader horizon. And at the same time, how socially connected are you? How can you connect another person who is connected to the soil and who is actually talking to the soil and keeping a relationship with it? And I have heard many times, like, sorry to quote this again, Manisha, myself and Ritesh have spoken few at times, like how he goes out, talks to a few of the farmers around near your house and buys the vegetable, and he feels that those vegetables are greatly fresh enough than buying it in a market. Okay, so don't you believe that he has already built in a certain relationship with those vendors, maybe agriculturists? They have already built in a relationship, right? But next time when Ritesh or yourself go to those vendors, what happens? He might have a heap of vegetables. Okay, he will still pick the best ones out of that heap and give it to you. That's the relationship. When a vendor or a farmer at that level can extend that kind of a courtesy to you, can we not extend that 1 hour in a month back to him? Go back to him, sit with him, have a chai, maybe a smoke, and then talk to him. Tell him that ये जो आप उगा रहे हो, ये किसने बताया आपको, कहाँ से पूछा आपने, इसके बाद आप क्या उगा रहे हो, इसके कैसे fertilizers डाल रहे हो, ये सारा कुछ आप पूछता, एक discussion. I don't want you to become a teacher to him or her, and they should not. It's a friendly discussion, okay, and that friendly discussion can bring in some value into that farmer. Believe it or not, I strongly feel that makes a greater impact than when you go and impose, and when you go and try to give some seminar and all. People are not really interested. They will always want to see it in practical happening. Okay, when some seminar happens, they go back home, they still discuss with their own community, they still discuss with their own group, and then say, "ये सब बकवास है यार, जो हो रहा है वही हो रहा है." Right.
So that approach is already gone. I mean, मेरे generation में वो approach चला गया. Seminar, webinar और ये जो markets है, दिल्ली में, बैंगलोर में, सारे जगह पे agricultural universities are conducting this fairs where many agriculturists come. It's become a competition to bring their best livestock, best harvest and all. But then, why are we always talking about the best? I mean, there is a competition, yes, but then we need to look at the worst situation. We need to reach people who are in a worst situation and not showcase the best. Bests are already there, and you might go and notice जिसके पास 100-200 एकड़ है वो सारे बेस्ट हैं because they are already financially safe. They are making the best livestock, they are making the best money. But people who are 1-2 एकड़ का जो land रख के बैठे हैं and they don't know what to do, and they are definitely sitting as a street side vendors selling their tomatoes, potatoes and all. Right? I mean, as long as we do not connect with them, I strongly feel that the changes that we are trying to bring in here, by the time our next generation comes in, we will be still leaving them the same space to work. I don't want that to happen. We should work this space and ensure that our next generation gets the next space, which is much better space. And they are working at a much better scope of options. हम जो कर नहीं पा रहे उसके ऊपर वो लोग काम करेंगे, मेरे नेक्स्ट जनरेशन काम करेंगे. मैं इस पे बिलीव नहीं करता. जो मुझे करना है वो मैं कर लूंगा और जो आपका है वो आप करो. That's a kind of strategy I feel. And this crop rotation, why I brought this up as a discussion is, this crop rotation is something which is applicable to all the geographies, all the landscapes across the planet. Wherever you go, we have a land, we have a soil, and crop rotation. We have agriculture, and where we have agriculture, crop rotation can be done with multiple crops, or even we can include the livestock, and you can also use the forest trees like silver trees, sandalwood, teakuts, and all. So it's applicable across, and you don't need a marketing team to reach there or anything. It's just you build a relationship with the farmer, or you build a relationship with a person who is connected to the soil, and then straight away you can bring in a change without waiting for anybody else to help you push you in the market. So I still strongly believe that social connect at a level where it is actually required. Social connect at a level where a person connects with the soil, and that's where we need to bring in change. And when we start bringing change there, we will be inspiring our next generation. Our next generation should not feel that we are incapable to do something and training them to do it in the next. They should think that we are doing something and making an impact, and they should start doing it better than what we could do. And I strongly believe that they can do it, and their thought process is much better than as what we think. Like, we are much better than our forefathers. So let's hope and bring in change that we are supposed to be bringing in our generation. Right. So you mean to say that more action and less preaching, right? Yeah. Yes, definitely Oh, yes. I mean, yeah. more connect. I mean, all that matters. All that matters is, as I said, 1 hour in a month with one single farmer makes all the difference. I mean, we are 6 people here now. If we spend the same 1 hour every month for next 6 months, what is the change that we are bringing? 36 different farmers at 36 different locations. That's a huge location. That's a huge impact. We That's can right. definitely add value there. Yeah, and needless to say, I'm truly enlightened. And whatever you said reminds me of Sudha Murthy. The other day, I was just watching a video, and she was just saying that we don't need your money to do social work. We just need your time. Go Exactly. spend time. Time is the most precious thing that you can give to somebody in your life. And So, here, in this case, you are not giving time. In fact, you know what? You are spending time. And when you're spending time, every time we spend a minute for some work, we feel tired. We feel exhausted. But when you right. spend time with a farmer, believe it or not, 10 things you share with him, he is going to share 100 things back to you. That's true. That's And true. that's an Even. education we are getting exchanged. You are not educating somebody, you are getting educated in turn. Yes, right. Yeah, right. We are just exchanging the ideas, and that becomes a learning for us as well. That is Yes, absolutely exactly. right. Yeah. Yeah.
I totally agree to what you are saying, and I'm truly enlightened. And I think that see, this idea never came to my mind that I should go and speak to a farmer and try to educate him, because though I have seen farming very closely in my childhood, but now I am out of ideas, honestly speaking. I don't belong to that background, I don't have that kind of knowledge, but yes, I'll do my research and I'll try to reach out to people, and I'll try to spend some time, because being into education field, I have always thought of, going to kids, going to children, and sharing my knowledge, whatever I have gained till now. But yes, that this is one more idea which can be executed, and which can be taken forward. Before we close this discussion, especially with me, I would like to bring in a small example here. Okay, in one of the video that I was actually seeing of Sadhguru, Jaggi was there. Somebody asked him, like, how do you want people to remember you? So he says, I want people to live so blissfully that they should not remembering me. I mean, so we should look at a direction where, our next generation should not have a scope to work on this direction anymore, and they should all be farmers. Right, 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 Even if right. a part-time farmer makes sense, I mean, even if 1 or 2 hour, if he wishes to become a farmer, there is nothing like it. I mean, we could not do, and they are doing it only because we inspire them to do it. Absolutely. We talk about going into army and be a soldier for a year or two, but then this is also a great thing, because we being the agricultural nation, we should definitely try this, and I would maybe I'll just go and see how it goes. Okay, thank you for your insight, Mr. Kirti Prasun. Now Yeah, my next. I appreciate your time too. Thank you very much for listening patiently. All that I told. I mean, I hope it makes sense, and I was able to add value too. Thank you. Definitely, you are able Uh, to add value, and the kind I of have knowledge you I have have one shared. actually one question or this that I'm working actually practically. What you have said that you should work with farmers, you should tell them whatever is happening. Like since 2.5 years, not before that, but 2.5 years, I have given time. Like every evening, like Saturday and Sunday, I like it's the rare Saturday or Sunday I'm not going to my farm, and I'm telling people not to burn stubble, and still many of the people come, farmers come, but still they are burning. So the problem is also lies in the fact that they don't have money, proper money, or they don't have time, they don't want to give time. Like even if I want to give them for free this microbial culture whatever I have made, they are not looking forward to it, like they have habit of that. So I don't know how to inculcate that into the farmer, because that is real the problem. Because I have told um, many of the farmers whosoever comes to my farm, or whosoever I feel like talking and they are there, but still it's a problem that we are not able to make out this kind of idea to them. Most of the farmers, what they do is that they are working somewhere actually, and for the time part time they are doing farming, like because farming they are just sowing, then they 1 or 2 irrigations are needed, they are doing that, and they are going to their, like we are going to our jobs, they are also going like that. The farmers are not sitting in the fields, and they are not, so they don't have actually the time. The people who are doing jobs, they are also doing the farming work in my area, at least I can tell. No, So no, they are. perfect, perfect. What you said was definitely true. I mean, to hear, madam, what happens is in most of the places, right? I mean, when you say farming or agriculturing, it is been happening from generations. Like 4 or 5 generation people are farming sugarcane, or 4 or 5 generation people are farming paddy. So there is some set of psychology behind their mind, like मेरे दादा पर दादा ये कर रहे थे और ये लोग उग पा रहे थे, तो मैं क्यों नहीं, I mean, maybe वही follow करूंगा और maybe वही करूंगा. So that's a Hmm. mindset that they have. Okay, and if you want to change that mindset and enlighten them, right,
there is a first two things that you need to understand. Either you need to be an influencer or you need to be an inspirer. अब हम अपने बच्चों से कुछ करवा नहीं पाते unless and until we inspire them. हम उनको रिश्वत देना पड़ता है कि Yes. तुम्हें चॉकलेट दूंगा खाना खा लो, ये ऐसा नहीं है. I mean that's something that we cannot go ahead and do to an agriculture. So first thing what we need to identify is whom are they getting influence. उनमें से भी एक बंदा या दो बंदे जो लीडर्स होते हैं, जो 4-5 एकड़ का लैंड रखा होता है, अगर उसने कुछ कहा तो लोग मान लेते हैं. हर जगह पे हर लोकेलिटी में ऐसे कोई इन्फ्लुएंसर होता ही होता है, ऐसे कोई इंस्पायरर होता ही होता है. आपको उस इंस्पायरर को, उस इन्फ्लुएंसर को पकड़ना है. बस उसे पकड़ के आप उसके जो टोटल फार्मिंग है उसमें 10 या 15% का फार्म पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस पे चेंजेस दिखाने की कोशिश करो एंड देखो वहां से चेंज ऑटोमेटिकली आ जाएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज this is a generation, madam, at this point of time we are really lucky to be in the reason because only thing everybody wants is to get inspired, and it depends on you how you inspire them. Without inspiring anybody you cannot even talk to them. Nobody wants to hear. आपको कोई सुनना भी नहीं चाहता क्योंकि वो सोचता है कि जो मुझे पता है मुझसे बेहतर तुम्हें क्या पता है. ये मेरी जगह है, मेरी सॉइल है, मेरी पानी है, मुझे पता है यहाँ पे क्या उगेगा. दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस. सो आपको वो कॉन्फिडेंस को ब्रेक नहीं करते हुए, उसको भी साथ में लेते हुए वो कहाँ से इन्फ्लुएंस होगा, वो कहाँ से इंस्पायर होगा, उसे समझ के वहां से आपको इंस्पिरेशन लाना पड़ेगा. आप एक बार इस डायरेक्शन में सोच के देखो, we can definitely bring in. I'll give you one example, okay? In my place, what used to happen is, अगर weed cutting करना है तो सारे लोगों को either we bring the laborers, we pay them outright and help them to, I mean, ask them to clean the weeds. वो बोलते थे कि 15,000 होगा 2 दिन में काट के दे देंगे, या 20,000 होगा 2 दिन में काट के दे देंगे, ऐसे बोलेंगे. नहीं तो बोलेंगे 10 लोगों को लगेगा, 1 वीक लगेगा, एक बंदे का इतना चार्जेस है. सो दिस वाज द काइंड ऑफ थिंग दैट वाज हैपनिंग. और मेरे खुद के खेत में मेरे हाइट का वीड आ चुका था और आई वाज सर्चिंग फॉर पीपल. कोई मिल नहीं रहा था and everybody was quoting too much. Then is when in YouTube I saw that one Chinese guy was using some machine and cutting the weed, and this was around 12-15 years back story. I'm telling you now. I happened to search that particular equipment, go get it, and then the person who came with me to demonstrate how that machine works, he himself cleaned half of my farm, and baki jo half tha wo I was able to do. But then what I did, the people came because the noise that the machine was making, too many people came and were watching what I am doing. I asked them to try their hands on my equipment. They did. They used the equipment. They cleaned my farm, and believe it or not, मैंने बस 1 घंटा वो वीड इक्विपमेंट चलाया है, मेरा 5 एकड़ का फार्म पूरा क्लीन. डेमोन्स्ट्रेशन वाले ने आधा क्लीन कर दिया, बाकी जो आजू बाजू वाले फार्म वाले थे वो क्लीन कर दिया. एंड in next 1 week all the people around the farm had this equipment. And the best part was government was giving 50% subsidy on this equipment. This costed 26,000 and I got it for 13,000 10 years back. And imagine today entire my village has this equipment and uses this to clean their farm. And this is not because I was able to convince them. They got inspired by what I am doing. Then I realized, like, in practically when you sit with them and help them understand and help them try their hands on the equipment, that is when they feel the confidence, without which they will not get the confidence. अगर मैं जाके उनसे बोलूंगा कि मैं equipment लाके 2 दिन में क्लीन कर लूंगा, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ये होते हुए उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा है, अभी मानेंगे. This is the point. I mean, what I'm trying to say is, this generation has this capability. They don't want money. They don't want your time. They don't want anything. They just want to get inspired. How capable are you to inspire people? You either inspire or get a person who can inspire. Simple as that. We need not always be inspirers. We cannot inspire everybody. I can inspire maybe my corporate guys. I cannot inspire a terrorist, right? To inspire a terrorist, I need to get a terrorist only. But one thing I need to do is the best terrorist I need to get. In the same way, to inspire a farmer, I need to get a better farmer in your locality. Just identify the best one, who talks more, who does things, who communicates with their farmers. Just talk to him and convince him, and he will convince the rest of the people in the area. Try doing this. Yes. I'm sure that you will find success there.
Yeah, inspiration actually works because in my locality, bottle gourd were not actually nobody was getting bottle gourd. So with my compost, I was getting that last year, and like I got so many bottle gourds that now people are thinking now that we can sow bottle gourds over there. So that Perfect. is what happening. Yes, yes. I mean, that's the right way of doing it. I mean, you showcased, you did it, and you proved. Now everybody wants to do it because it's already proven. Yes. But one problem is also coming. Like I'm also from scientific background. Like when we go for soil and this checking, like as you say that we can go for soil checking and water checking. I have also done my soil and this checked, and but the report they have made, like they have given that many of the vegetables or horticulture these things and crops that you can grow, but actually in actual scenario that can't be grown over there. So that is also some Yeah. amalgamation is हर बार happening. ऐसा है कि I mean, you know what, every time we cannot go by the soil, we cannot go by the weather, you know, we'll also have to go by the financial status of the farmer. Even what happens is, for certain harvest that horticulture department is suggesting, the farmer might have to spend a lot of money, which farmer might not have because he might be a small scale farmer. So we will have to understand the total dynamics of this farming. I mean, what is a farmer capable of doing, and how much farmland does he have, and what is the soil condition, and what kind of weather flows through the year, and how much water does he get in terms of farming. So ये सारा डायनामिक्स समझ के हमें then we need to go and approach a farmer and help him or guide him or suggest him. Otherwise क्या हो जाता है ना, हमें if you go and talk to a farmer about farming areca and he has some 2 or 3 acres of land, imagine areca first harvest देखने के लिए 5 साल लग जाएगा, तब तक farmer मर जाएगा. So he will never do that. So what he does is he will always look for a short-term harvest, maybe a tomato or potato or maybe even paddy for 6 months or maybe 10 months ka sugar cane. That will be fine with him. That's the maximum a farmer can sustain who is a 2 acre, 3 acre farmer. But if he has to wait for a longer time to see the crop rotations result or to see the harvest in a much better position, then he need to be financially supported too. Is he in such a position where he can support himself financially? We need to look at that, understand the dynamics, and then provide the solution to them. I mean, I'm talking more of like a consultant, especially a corporate consultant, but then that works out with everybody. I know for that fact. Okay. So, thank you for sharing your knowledge and how we can inspire others and how can we spread this thing. So, my next question is to Ms. Surpreet Kaur. And, uh, ma'am, how can we implement composting at the ground level? How do you think it's possible to take it forward, and how the common people can do it? Good evening, ma'am. I'm really sorry because I'm in car right now. So I hope Okay. I'm audible to all of you. Yes, you are. You are Okay. definitely. Yeah. So first of all, I feel blessed to be part of this initiative, and the all the eminent speakers, those who had spoken before me, I really have taken a lot from them. Especially Kirti sir, when he said that we need to talk to the farmers and we have to instill that skill in children to grow their own food. I feel Mm-hmm. that's the most important thing, because if we can teach our young generation to grow their own food, Mm-hmm. maybe whatever they said for 1 hour a day. So Mm-hmm. I think that is the first level of making them, uh, empowering them basically. So Mm-hmm. when we talk about composting, I think we have see it's been taught in schools and everyone talks about composting. But what Mm-hmm. I feel that still there is little reservation about composting, like in especially in urban areas, and Mm-hmm. we need to just not only educate them about the advantages, but what I feel they will start only if they start loving the soil. That is one Okay. thing we need to instill. That should be the base of our whenever we talk about soil.
if we start loving soil, then only we can preserve it. So what other speakers have said, we have to take children to such areas where they come in close contact with nature and they talk about it. Then only we can motivate them to preserve it. So what I feel, what I can do in this program is, because I deal with students of grades 4 and 5, which is the age when they can be molded into whatever we want. So I have thought that I we have a subject called UN in our school curriculum, so United Nations, and there we are talking about 17 sustainable goals which they have given. So one amongst that is, of course, soil preservation. So with that, I am planning to take my children for a project where they can learn about soil, about growing food, and about conserving it. So that would be my contribution. What I feel I can try uh, uh, contributing in this area, and Okay. what so that's all from me. And composting, what I feel, it should start from, of course, pandemic. Everyone, it has made people closer to nature, and people have started doing these steps, because in my society only I have seen people started doing this, making compost. And in in flats also, I'm staying in a flat, so there also people have started doing this. So I think people have become more aware about this cause. And rest, I think we just need to keep doing these small steps to keep this light glowing, so that uh, it can take us to some our whatever we aim for. So Okay. that's how, and thank you for making me a part of this initiative once again. Thank you. Thank you for your time, ma'am. And I'm really hopeful that, as you have mentioned, that you will be taking it forward in your school and you will try to implement with the kids you are dealing with. So let's just contribute in whatever way it is possible, and definitely we'll see a change soon. Okay, so. I would like to ask my next question to Mr. Devesh Tiwari. Uh, I hope he is here. I just need to check once. देवेश जी आप हैं हमारे साथ में? देवेश जी आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ. देवेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, नेटवर्क इशू बहुत है हमें, तूफान आ गया था शाम को। अच्छा, हाँ। अच्छा, ओके। तो हाँ, मैं देवेश जी कल निकल जाऊंगा ऑफिस अपने तो। कल से नेटवर्क रहेगा से। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली आप आ रही है ऑडिबल आवाज। नहीं है। ठीक है। आपसे मेरे को एक सवाल पूछना था कि आप क्योंकि सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमारी सरकार इस संदर्भ में क्या करने की कोशिश कर रही है, और वो ग्राउंड लेवल पे किस किस हद तक लोगों तक पहुंचाई जा रही है मदद, और वो कितनी सक्सेसफुल है, कितनी कारगर है वो, आप प्लीज बताएं हमें। देवेश जी आपके पास आवाज आ रही है? देवेश जी आप सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि देवेश जी का नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है उस वजह से हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तब तक हमारे पास में जो एक और स्पीकर हैं मिस्टर मिश्रा, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगी। मिश्रा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे?
मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा, Audible to you all. हेलो गुड इवनिंग। हेलो। आप ऑडिबल हैं, हमें हम सुन पा रहे हैं आपको। ओके ओके ओके, नमस्कार मैम। नमस्कार। तो फर्स्ट ऑफ मैं ऑल आई वुड लाइक टू जी प्लीज गो अहेड, आई एम सो सॉरी। या ओके ओके first of all I would like to thank you Manisha ma'am for creating this nice platform which is bringing in together the collective consciousness for the better and sustainable future. So I'm congratulating you for this initiative. थैंक यू। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज यहाँ आ रहे हैं, तो आई विल restrict myself in the audio mode only. Okay, so my apologies नो for the inconvenience. So you can नो go ahead with your question ma'am now. ओके। हेलो। सो जी देवेश जी, आप सुन पा रहे हैं? आप कनेक्ट हो गए हैं? देवेश जी, क्योंकि हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, तो हेलो। हमारे पास जो अगले स्पीकर हैं, हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं तब तक। Okay, so Mr. Mishra, I would like to ask you that Sikkim is an organic state, and the way they are implementing things, and the way they are executing, and they are able to जी successfully do organic farming. So, जी can we implement the similar model in any other state of India? What is your take on this? Okay, ma'am. First of all, I would like to give a brief introduction about Sikkim and its organic farming, and then we'll talk about the constraints which are there in implementing the organic farming throughout the country in one go. Okay. Sikkim is the first organic state of India, ma'am. So इसका ध्यान रखना होगा हमें कि सिक्किम बहुत छोटा स्टेट है एक। ओके, उनकी यहाँ जो पॉपुलेशन है काफी कम है, तो एक कहीं ना कहीं उनको एक फायदा हुआ है कम पॉपुलेशन का कि वो इस चीज को आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मैं बताना चाहूंगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ क्रॉप्स which avoids the usage of synthetic and chemical inputs like fertilizers, pesticides and the growth agents. किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता इसके अंदर, और ये खेती की ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स को अवॉइड किया जाता है। और एक और चीज पर बहुत ध्यान दिया जाता है जिसको कहते हैं सॉइल हेल्थ, यानी सॉइल की खुद की जो हेल्थ है। जैसा कि सतगुरु ने बोला था कि ये एक लिविंग मटेरियल है, ऐसा नहीं कि ये लाइफलेस है। कोई भी चीज जो लाइफलेस है वो कैसे लाइफ को पनपा सकती है ना। तो कहीं ना कहीं सॉइल की जो हेल्थ है, जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर होने चाहिए उनको भी मेंटेन करके रखना, ये भी एक इनिशिएटिव है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो यह सब करने के लिए जैविक यानी ऑर्गेनिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। और इसमें जो चीजें सहायता कर सकती हैं which is crop waste, farm waste, animal waste and other biological material along with beneficial microbes. तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारत में जो खेती है, अगर आज से 60-70 साल पहले देखा जाए तो बैलों से होती थी। एनिमल लाइफ स्टॉक का काफी ज्यादा यूज होता था, मशीनरी नहीं थी। हाँ, एक चीज ये भी ध्यान रखनी होगी कि प्रोडक्शन भी काफी कम था। बट जो एक समस्या हमारे सामने आज खड़ी हो गई है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो एडिबल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें बहुत ज्यादा, आप लोगों ने भी सुना होगा कि केमिकल का लेवल बहुत ऊंचा है। और अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो भारत से वीट गया था उसमें हो सकता है कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो, उसकी वजह से भी ये चीजें हुई हो, बट कई कंट्रीज ने इस बात को कह के रिजेक्ट कर दिया कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया गया है, ये हमारे कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए एक बड़ी एम्बैरेसमेंट की भी बात है। तो हमारे देश में 60-70 साल पहले क्रॉप वेस्ट और फार्म वेस्ट जो था, मैं कहने के लिए इसको वेस्ट बोल रहा हूँ, बट ये बहुत ही यूजफुल मटेरियल हुआ करता था। तो इसका इस्तेमाल करके लोग खेती बाड़ी किया करते थे। प्रोडक्शन कम होता था बट जो चीजें हमें मिलती थी वो बेहतर हुआ करती थी। ठीक है।
तो अब थोड़ा सा आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं, कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं बायो ऑर्गेनिक फार्मिंग की। एक तो है कि ये इको फ्रेंडली तरीका है, यानी ये पृथ्वी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालता, अर्थ की हेल्थ को इफेक्ट नहीं करता, मतलब उसको पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करता है। और ये अगर एक एंगल से देखा जाए तो ना एक सस्ता तरीका भी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजर्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। अब जो बड़े और मझोले फार्मर्स हैं, बिग एंड मीडियम जो हमारे फार्मर्स, वो तो यूज कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स को, लेकिन जो बहुत गरीब किसान है, जो सीमांत मार्जिनल किसान है, उसके लिए फर्टिलाइजर्स को यूज कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। वो कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जाके लोन लेता है, पैसे लेता है, उसमें डेट ट्रैप में फंसता है, और तब जाके कहीं वो खेती बाड़ी कर पाता है, और वो जो प्रोडक्शन जनरेट भी करता है उसमें उसको कुछ फायदा नहीं मिल पाता, और अल्टीमेटली सारा जो प्रोडक्शन है वो कंज्यूम हो जाता है, या तो शेयर क्रॉपर्स ले जाते हैं, या फिर वो जो जिससे पैसा लिया है वो ले लेता है, और या फिर मार्केट जो प्लेयर्स है वो खा जाते हैं, मतलब किसान बस किसी तरह जिंदा रहता है। तो सिक्किम ने सबसे पहले, अगर हम बात करें, सिक्किम ने 2003 में ऑर्गेनिक फार्मिंग को सीरियसली प्रमोट करना शुरू किया था। ठीक है, तो काफी समय लगता है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। ठीक है, थोड़ा सा मैं और बताना आपको चाहूंगा सिक्किम के विषय में, सिक्किम ने क्या अचीव किया इसमें। 2018 में सिक्किम ने इस इनिशिएटिव के लिए फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड उसको दिया गया था। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, रोम में सेंटर्ड है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, उसने ये अवार्ड उनको दिया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल बॉडी में। जी, आई एम सॉरी टू इंटरवीन, आपकी आवाज एको कर रही है। ओके, हेलो, हेलो, आ गए हैं नेटवर्क में, दूसरा फोन ले आए नीचे से। जी जी, अब शुक्रिया जी। जो भी क्वेश्चन पूछना। जी हाँ, जी, अभी इनका हाँ जी, मैं क्विकली इनका हो जाए इसके बाद। मैं क्विकली वाइंड अप कर देता हूँ। और नहीं, आप बताएं क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर एक स्टेट उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पा रहा है तो बाकी की जो स्टेट्स है वहां पे भी डेफिनेटली ये चीज की जा सकती है, बट लोगों के अंदर शायद अवेयरनेस नहीं है या उस तरह की मैनेजमेंट नहीं है। तो आप जो भी है आप विस्तार से बताएं। या ठीक है मैम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 में सिक्किम को इनिशिएटिव फॉर द फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड मिला था, और ये इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था, जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। और यहाँ बड़े गर्व की बात है कि 51 और नॉमिनीज थे जिसको सिक्किम ने पीछे करके ये अवार्ड पाया था। तो थोड़ा सा मैं फ्यूचर पॉलिसी के बारे में बता देना चाहूंगा। फ्यूचर पॉलिसी जो है, ये इसको बोलते हैं ऑस्कर फॉर द बेस्ट पॉलिसी अवार्ड। तो कहीं ना कहीं एक फ्यूचर पॉलिसी के लिए सिक्किम को ये अवार्ड दिया गया था 2018 में। तो थोड़ा सा सिक्किम की ऑर्गेनिक फार्मिंग की हिस्ट्री को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2003 में सबसे पहले सीरियसली प्रमोट करना शुरू किया था सिक्किम ने, और फिर 2010 में ऑर्गेनिक मिशन शुरू किया था सिक्किम ने। और ये एक आसान मिशन नहीं था, इसकी कुछ मुश्किलें थी। सबसे बड़ी मुश्किल तो थी कि फर्टिलाइजर्स के यूज को रोकना था। अब आप खुद सोचिए, फर्टिलाइजर्स के यूज को रोकने का मतलब क्या होता है। सिर्फ फार्मर के एंड पे प्रॉब्लम नहीं है, फार्मर के तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल बिलियंस की कंपनीज हैं, मल्टी मिलियन एमएनसीज हैं जो इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स में, वो कहीं से भी ज्यादा खुश नहीं थे इसमें। दूसरा कि जो फार्म लैंड है उसको 100% ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिलाना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ला पाना आसान काम नहीं था। तो 100% ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देना फार्म लैंड को, ये एक मुश्किल काम है मैम। इसको काम करने में कम से कम 2-3 साल लगते हैं एक फार्मर को। ठीक है, लेकिन सिक्किम ने अपने आपको 100% ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिलवाया है। अब आप खुद भी सोच सकते हैं 2003 में जो चीज शुरू हुई है वो 2018 में जाके कहीं ना कहीं पूरी होती है। ठीक है, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था सिक्किम के लिए। अब इससे सिक्किम को जो फौरी तौर पे जो बेनिफिट्स हुए वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक एग्रो प्रैक्टिसेस की वजह से सिक्किम का टूरिज्म बूस्ट हो जाता है काफी ज्यादा। और ये रिपोर्ट आती है 2014 से 17 के बीच में 50% इंक्रीज होता है सिक्किम की टूरिस्ट अराइवल्स में। और ज्यादातर जो टूरिस्ट आ रहे थे वो फॉरेन फार्मर्स थे, वो सीखना चाहते थे कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है सस्टेनेबल तरीके से।
ठीक है। Okay. तो ऑर्गेनिक फूड मार्केट की जो ग्रोथ है वो फार्मर्स को फायदा पहुंचा रही थी, और खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, तो वहां पर जो एक प्रॉपर मार्केट है, जो $90 बिलियन का मार्केट था, 2019 का जो डेटा है $90 बिलियन का, उस पर नजर भारत की थी। ये एक बहुत अच्छी बात है और हमें इसको आगे भी डेवलप करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिक्किम ने कैसे इस चीज को अचीव किया, मतलब मेनली तो दो कंस्ट्रेंट थी कि फर्टिलाइजर्स के यूज को रोकना और फार्म लैंड को 100% ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिलाना। ये दो जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके बाद तीसरी एक प्रॉब्लम जो आज भी कहीं ना कहीं है, वो मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। उसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब आपका ना दूसरा क्वेश्चन था, जो आपका फाइनल क्वेश्चन था, कि व्हाई कांट वी शिफ्ट टू ऑल टुगेदर टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम एक साथ ही क्यों ना ऑर्गेनिक फार्मिंग में मूव कर जाएं। तो इसका आंसर देना बहुत मुश्किल नहीं होगा। आज दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 8 बिलियन को टच करने जा रही है। मोर जी। देन 7 बिलियन है, बट 8 बिलियन को टच करने जा रही है। 7 to 8 बिलियन पॉपुलेशन को ऑर्गेनिक फूड पहुंचा पाना अभी की टेक्नोलॉजी और अभी की जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके। जी। अब मैं ये जी। नहीं कहना चाहता कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। कोई भी चीज जब शुरू होती है तो छोटी ही होती है, और वही चीज आगे सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करती है, तो वो एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज दिमाग में रखना होगा हमें कि हम ऑल टुगेदर फर्टिलाइजर्स के यूज को रोक नहीं सकते। इस मुझसे पहले भी जो लोग बोल रहे थे उन्होंने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया था, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन शिफ्टिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहला प्रॉब्लम जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ सर्टिफिकेशन। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड इट टेक्स अराउंड 3 to 4 years टू गेट इट। और इसमें एक अकेला फार्मर, अब आप सोचो कि यूपी या बिहार या झारखंड या बुंदेलखंड, जो भी राज्य हैं या जो खंड है, यहाँ का जो फार्मर है उसको कौन ये समझाएगा कि भाई आपको सर्टिफिकेशन लेना होगा। यानी वो अपने एंड पे नहीं कर सकता इस चीज को। इसमें कहीं ना कहीं एनजीओस को भी आना पड़ेगा, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जैसा कि सिक्किम की गवर्नमेंट ने लिया है। बट हमें ये भी याद रखना पड़ेगा सिक्किम की पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम जैसा मैंने आपको बताया वो है प्रॉब्लम ऑफ सर्टिफिकेशन। दूसरी जो प्रॉब्लम है, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग्स फार्मर्स, ठीक है। जो किसान हैं उनके अंदर जागरूकता की कमी है। ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो ऑल टुगेदर पूरे नेशन की कमी हो जाएगी, पूरी ह्यूमन सोसाइटी की कमी हो जाएगी। एक किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। और ज्यादातर जो फार्मर है ना हमारे इंडिया में, वो सीमांत किसान है, मार्जिनल फार्मर्स हैं। बहुत ज्यादा उनके पास 1.5 या 2 एकड़ जमीन होती है, तो उनके लिए अर्ली इन्वेस्टमेंट कर पाना ये बहुत मुश्किल काम है। और जो इनिशियल टाइम्स में जो नुकसान होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्योंकि एकाएक प्रोडक्शन काफी कम हो जाएगा, उसको वो बेयर करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, उसको झेल पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जी। तीसरी जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, वो है मार्केटिंग की समस्या। कोई भी चीज जिसकी डिमांड है उसको हम तभी फुलफिल कर सकते हैं जब हम प्रॉपर तरीके से उस चीज को मार्केट करें, उसकी डिमांड को सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करें, और इतना मार्जिन दे पाए सभी लोगों को कि जितने लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनको ठीक ठाक अमाउंट ऑफ कैपिटल मिलता रहे और वो उस चीज को कंटिन्यू कर पाए। तो मार्केटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने कई बार किसानों से बात करी है तो कहते हैं भाई हम काला गेहूं उगाना चाहते हैं। किसी ने बता दिया होगा उनको कि काला गेहूं जो है वो फायदेमंद है, महंगा बिकता है, फॉरेन कंट्रीज में बड़ी डिमांड है उसकी, ऑर्गेनिक हो तो बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं वो लोग, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, उगा तो लोगे लेकिन बेचोगे कहाँ पे? मार्केट ही नहीं है उनके पास। और अगर मार्केट जनरेट करने की बात करो तो वहां बीच में मिडल मैन बहुत सारे आ जाते हैं, और वो जो एक मिडल मैन की प्रॉब्लम है वो अगर इस चीज में भी आती है तो बहुत दिक्कत करती है। अच्छा, इसके बाद जो चौथी समस्या है वो है शॉर्टेज ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब जो है, मैं यहाँ पे जो अज्यूम कर रहा हूँ ये है कि भाई पहले जो हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस थी उसमें एग्रीकल्चरल मशीनरी का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता था। गाय बैल होते थे, लोग जानवरों को भी बहुत पालते थे, मतलब ये उनका डेली काम था। अब जो है आप देखो ज्यादातर लोग शहरों में रह रहे हैं, शहरों में लाइफ स्टॉक को पाल पाना या गांवों में भी लाइफ स्टॉक को पाल पाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मुश्किल काम है। तो बायोमास की जो कमी है, जैसे हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल लाएंगे कहाँ से भाई? तो बायोमास की कमी है। थोड़ा सा आप लाइव स्टॉक को एक्सप्लेन कर देंगे क्या आसान भाषा में?
मैम लाइव स्टॉक का मतलब वो जैसे मवेशी हो गए, जानवर हो गए, जी उनसे जो एक्सक्रीटा होता है, जो उनका जो एनिमल वेस्ट होता है, वो जी गांवों में जो हम जानते हैं, जो हमारे यहाँ पे होता था कि भाई पहले वो एक जगह पे लगा दिया करते थे, वो 6-7 महीने तक वहां पे कंपोस्ट होती रहती थी, उससे जो खाद बनती थी उसको खेतों में डाला जाता था। अब चूंकि जी पहले मेरे दरवाजे पर 6 भैंसें हुआ करती थी, 6 या 7 गायें हुआ करती थी, अब 2 हैं, और कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है। जब लाइफ स्टॉक ही नहीं है तो बायोमास मुश्किल से मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा जी बायोमास जनरेट नहीं होगा, ऑब्वियसली बायोमास तो खेती बाड़ी करने से भी जनरेट होता है, जो पराली हो गई या जो भी चीजें हो गई, सब एनीथिंग विच इज बायोटिक, तो उसको हम कम डिकम्पोज करके यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बायोमास से मेरा मानना ये है कि जो मवेशियों से जो प्राप्त होता है, जो जानवरों से प्राप्त होता है, वो चीज बहुत कम हो गई है, क्योंकि जानवरों को पालने की जो प्रैक्टिस है, डेयरी फार्म्स खुले हुए हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल पे लोगों के पास पहले बायोमास होता था वो कम हो गया है काफी। हम्म, ठीक है। पांचवी जो समस्या सबसे बड़ी है यहाँ पर, वो है लैक ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो भी हमारे सीमांत किसानों के पास या मार्जिनल फार्मर्स के पास नहीं है, और भारत में ये सबसे ज्यादा फार्मर्स है, इस तरह के जो फार्मर्स है वो सबसे ज्यादा है। और फिर छठी समस्या है हाई इन्वेस्टमेंट की। अब आप खुद सोचिए कि आपको कोई खाद यूज नहीं करनी है, आपका जो पैसा बचा वहां ठीक है, लेकिन आपका जो ओवरऑल प्रोडक्शन होगा अगली स्टेज में वो काफी कम हो जाएगा, और मार्केट है नहीं इसकी अभी उतनी इंडिया में खासकर, आप मार्केटिंग कर नहीं पा रहे हो, तो वो जो इन्वेस्टमेंट हाई होगा और जो आउटपुट आपको मिलेगा, जो प्रॉफिट आपको मिलेगा या जो भी बचेगा आपके पास, वो पिछली बार की अपेक्षा कम होगा। तो भारतीय किसान इसको अभी नहीं झेल पाएगा, बिना किसी गवर्नमेंटल या एनजीओ सपोर्ट के वो आगे नहीं बढ़ा सकता। जी जी और फाइनली जो मैं एक प्रॉब्लम इसमें जो मैंने पहले भी डिस्कस कर ली, जो मैंने फाइनल प्रॉब्लम मानी, वो है लो यील्डिंग। काफी यील्ड जो है इसकी, जो पैदावार है वो काफी कम है, इसकी वजह से किसान इसमें स्विच करने से डर रहे हैं। तो सिक्किम का जो मॉडल है उसके मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए हैं, उसकी हिस्ट्री बता दी है, और कुछ प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस कर लिया है कि क्यों हम इसको ऑल टुगेदर शिफ्ट नहीं कर सकते। और यहाँ मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा सभी लोगों को, जितने भी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कि श्रीलंका ने एक बार डिसीजन लिया था अभी बड़े रिसेंटली कि हम ऑल टुगेदर स्विच कर देंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और प्रॉब्लम वहां ये हो गई, ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस, फॉरेन रीजंस एज वेल, कि वहां पर फूड की क्राइसिस बहुत तगड़ी हो गई। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें बड़े डेलिकेट और डेलिबरेट तरीके से स्विच करना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, गवर्नमेंट के अंदर वो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, तभी ये चीज आगे बढ़ सकती है। और अल्टीमेटली इसमें फायदा सबका होगा, इसमें मिट्टी भी बचेगी, मिट्टी की हेल्थ बचेगी, प्रोडक्शन शुरुआत में कम होगा, लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी लोग कहीं ना कहीं इसका फायदा देखेंगे और इसके अंदर चेंज को महसूस करेंगे। ओके जी मैम। जी शुक्रिया सर। जी सर आपका बहुत बहुत जी आपने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है जिससे डिसअग्री किया जा सके। जी सब कुछ जो बताया बड़ा ही काम का और लाभदायक है। तो मुझे जी आशा है कि जो लोग देख रहे हैं वो उनको जरूर कुछ ना कुछ इसमें से सीखने के लिए मिलेगा और वो घर पे आज के सेशन से ले जा सकें कुछ। आई एम श्योर जी अबाउट इट। तो जी अब क्योंकि देवेश जी हमारे साथ हैं, तो धन्यवाद देवेश जी। जी से ये पूछना चाह रही थी कि सरकार कितना इस चीज को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर पा रही है, और क्या सच में हमारी सॉइल कंजर्व हो रही है, क्या सच में माटी की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है सरकार के द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज हैं उनसे। मैम देखिए, सरकार तो काम कर रही है उस पे, और ये अभी जैसे ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, अभी हमारे यहाँ 2018 में 3 जिलों में लॉन्च की गई थी, जी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत। और ओके। ये हमें डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, 3 जिले में, जिसमें कि एक वो बनता था, जैसे कि समूह बोलते हैं उसको, जैसे कि उसमें 30 लोग ले, उसमें सरकार जो होती 50,000 रुपए पर ईयर किसान को देती है खेती करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि उसका प्रोडक्शन गिरता है, जब ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो प्रोडक्शन होगा नहीं पहली साल, और 3 साल बाद उसको सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं कि ये आपकी जमीन जो है ऑर्गेनिक हो गई है, एलिजिबल हो। और प्रति वर्ष हम उसको 50,000 रुपए किसान को प्रोत्साहन राशि के रूप में देते हैं। अब क्या है कि इस समय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी फिर
अपना ये बजट सत्र जो था उसमें बोला है कि हम ये पूरे उत्तर प्रदेश में जैविक खेती का प्रचार प्रसार करेंगे और इसको लॉन्च भी करेंगे। अब ओके। कहाँ तक सफलता, क्योंकि इसमें जो अभी सर ने बताई हैं, जितनी भी समस्याएं बताई हैं, वो पूरी समस्याएं बिल्कुल सही हैं और उससे हम एग्री भी हैं। ये समस्याएं हैं और हम लोग क्या है कि उस पर निरंतर काम कर रहे हैं। और रही बात सॉइल की, अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत काम हो रहा है बुंदेलखंड जोन में। तो हम लोग खेत तालाब योजना के अंतर्गत तालाब पॉन्ड्स का निर्माण करा रहे हैं, चेक डैम बनवा रहे हैं। उससे क्या है कि जो सॉइल का कटान है, सिल्टेशन है, उसको रोक रहे हैं। और जो नेचुरल वाटर है, जो बरसात का वाटर है, उसको हार्वेस्ट करते हैं तालाबों में, जिससे किसान अपनी सिंचाई भी कर ले और लीचिंग के द्वारा वो पानी जमीन में जाए, जिससे ग्राउंड लेवल का जो वाटर इम्प्रूव हो। ये जी। काम अभी एक नई योजना लॉन्च की है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, प्रधानमंत्री इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। इससे क्या होता है कि हम लोग किसानों की जो जमीनें हैं, जैसे कि क्या होता है सॉइल इरोजन वगैरह से कट जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में ज्यादातर जमीन वैली टाइप है। तो इसको हम लोगों को, इसमें जो है हम लोग छोटी छोटी बंदियां कंटूर टाइप का बनवाते हैं और बड़े जो चेक डैम का भी निर्माण कराते हैं, जल संचयन बंदियों का, और समतलीकरण का कार्य, जिससे कि किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और हमारी जो सॉइल का है उसका भी सुधार हो कहीं ना कहीं। और इसमें हम लोग एक वो भी करते हैं, जैसे कि एक कॉम्बो पैक का तरीके मान लो कि जैसे कि धान गेहूं बाजरा का एक डेमोस्ट्रेशन भी देते हैं। जी। ये सब कार्य चल रहे हैं अभी, और इस पे सॉइल पे तो काफी काम हो रहा है। अच्छा, तो हाँ। किस लेवल पे हो रहा है? कैसे आप लोग इंश्योर करते हैं कि सच में जो माटी है उसको बचाया जा रहा है और या उसकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जा रहा है? कि आप लोग ये चीज कैसे इंश्योर करते हैं? ये एक मेरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या कोई रेगुलेशन है कि किस मात्रा में पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हम खेत के अंदर करेंगे, और अगर है तो उसको कैसे नियंत्रण में आप लोग लाते हैं? क्या क्या करते हैं उसके लिए? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात ये है कि जो किसान है वो इतना जागरूक है नहीं कि जी। किस तरीके से, क्योंकि वो अपने ही पद्धति से करना चाहता है। सॉइल की कंडीशन क्यों खराब हुई, इसका मेन कारण ये है कि जो गांव के किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जैसे कि गेहूं करेंगे, गेहूं के बाद मतलब बाजरा करेंगे, जो भी करते हैं पद्धति से करते हैं, वो बदलते नहीं, क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाते हैं। अगर किसान जी। क्रॉप रोटेशन अगर अपनाने लगे तो सॉइल पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या होता है कि एक ही फसल को निरंतर लेते रहने से एक तो उपज भी कम हो जाती है और सॉइल की कंडीशन भी खराब हो जाती है। जैसे हम ही लोग हैं, अगर महीने भर दाल खिलाई जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि जीव जीव उब जाएगा, हम लोग दाल नहीं खाएंगे फिर अगले महीने से। इसी जी। तरीके सॉइल का है। तो हम लोग इस पे काफी काम चल रहा है। हम लोग गोष्ठियां करते हैं, जिले स्तर पे मेले लगाते हैं, ब्लॉक स्तर पे मेले होते हैं, तहसील स्तर पे, ग्राम स्तर पे, और काफी जागरूकता फैला रहे हैं। और जो नई नई मशीनरी आई है उसका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इस ज्यादातर हम लोग प्रोत्साहन करते हैं कि आप जो है मोबाइल लाइन में करें, सीड्रिल से करें, जिससे कि फर्टिलाइजर का भी कम से कम उपयोग हो, आपका बीज भी कम लगे। और सिंचाई में भी हम लोग ये समझाते हैं कि सिंचाई आप ज्यादातर स्प्रिंकलर से करें या ड्रिप इरिगेशन से करें, जिससे पानी का भी बचाव हो। क्योंकि पानी ज्यादा लगा देने से फसल को नुकसान होता है, लेकिन किसान को इससे कोई फर्क नहीं है। तो अच्छा। अब इसमें क्या है कि हम लोग तो लगे हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं, अपना निजी अनुभव बताता हूं मैं। एक किसान के पास 20 बीघे जमीन थी, अप्रोक्स 3 हेक्टेयर। तो हमारा मित्र भी था, वो मित्रता हो गई थी, हमने उसके यहाँ वेजिटेबल क्रॉप का एक प्रोजेक्ट लगवाया। जी। उसमें मैंने कहा कि जो भी सरकार से सुविधाएं हैं वो दिलाऊंगा मैं। और इससे क्या है कि मैंने उसके यहाँ जो है वेजिटेबल क्रॉप लगवाई 10 बीघे में, और ड्रिप इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगवाया। अपने यहाँ से खेत तालाब योजना के अंतर्गत उसके यहाँ तालाब भी खुदवाए, जिससे कि जो बरसात का पानी था
वो उसमें स्टोर हुआ। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन के प्रोजेक्ट उससे मतलब सिंचाई करना चालू किया, उसी से पेस्टिसाइड को देना, उसी से फर्टिलाइजर को देना, और उससे इतना ज्यादा लाभ हुआ कि वो एक साल में 15 से 20 लाख रुपए पैदा किया, और खाली बैगन की खेती किया था, बैगन की खेती। अच्छा। तो उससे काफी लोग जागरूक हुए। मुझे तो ये लगता है कि कम से कम 50 हेक्टेयर वहां पे वेजिटेबल होने लगी। अब क्या है, किसानों के अंदर उसको जो है कॉन्फिडेंस से समझाना पड़ता है कि भाई अगर तुझे नुकसान होगा तो मैं भरपाई करवाऊंगा विभाग से, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। तो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा किसान जागरूक हो रहे हैं, लगे हुए हैं। अब क्या है कि इतना ज्यादा किसानों को समझा पाना बड़ा टास्क है यहाँ पे, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि, क्योंकि सरकार की भी मंशा है कि आय दोगुनी हो, और उस पे काफी काम भी चल रहा है। सरकार की मंशा है कि किसान की आय दोगुनी हो, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोग ज्यादातर कहते हैं कि कैश क्रॉप करो, और आप खेती को जीवन यापन का साधन न मानिए, आप इसको बिजनेस में लाइए, तभी आप जाके कुछ आपकी स्थिति सुधार होगी। और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हम ये चाहते हैं कि उसके द्वार तक पहुंचे, और हम लोग इस पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। जी। अब हाँ, अभी चित्रकूट का ग्राउंड वाटर लेवल जो था काफी कम था, लेकिन जब से सॉइल का ये खेत तालाब योजना वगैरह चला है, तब से काफी सुधार हुआ है वहाँ पे। अच्छा, तो ये खेत तालाब योजना क्या है, थोड़ा सा आप बताएंगे एक बार? ये हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में लॉन्च की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इसमें था कि हर खेत को पानी, उनका था हर खेत को पानी। तो हर खेत में पानी के लिए लोग जो है नहर, इस समय आप बुंदेलखंड कभी जाइएगा देखिएगा, नहरें हर जगह से होकर निकल गई हैं, और जहाँ पे पानी नहीं पहुंच सकता वहां पे खेत तालाब योजना के अंतर्गत तालाब पॉन्ड्स बनवाते हैं हम लोग, कि जिससे पानी रिस्टोर हो जाए, और स्टोर होने के बाद वो अपनी सिंचाई कर सके, एक या दो, और अपना मछली पालन कर सकता है, सिंगाड़ा पालन कर सकता है। उससे कहीं ना कहीं किसान की आय में कुछ बढ़ोतरी होगी, उसकी स्थिति में कुछ सुधार होगा। ये 2015 से चल रहा है। ओके। देवेश जी, एक व्यूअर है बाला चंद्रन जी, उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है कि जिला स्तर का जो नंबर है, जो फोन नंबर है, वो कैसे प्राप्त करें, और क्या फोन पे जानकारी प्राप्त की जा सकती है आप लोगों के बिल्कुल डिपार्टमेंट? बिल्कुल, जानकारी कर सकते हैं। एक हमारा कृषि विभाग का टोल फ्री नंबर है 1800-180-151। एक बार फिर ये से आप बोल देंगे क्या? 1800 जी। 180 180 15 15 51। 51। ये नंबर भारत में किसी भी राज्य से लगाया जा सकता है। ये नंबर, ये उसी राज्य का जो है लोकल जो किसान कॉल सेंटर होता है हम लोगों का, उसमें जाके लगेगा, और वहां से पूरी भी जो भी जानकारी लेना चाहते हो, वहाँ हमारे एक्सपर्ट रहते हैं, उनसे पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जी जी जी। तो डॉक्टर पुनीता, आप कुछ पूछना चाहेंगे देवेश जी से? आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर पुनीता। डॉक्टर पुनीता, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम सुन नहीं पा रहे आपको। कुछ नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम आ रहा है। तब तक क्या आप बता सकते हैं कि किसान और क्या कर सकता है जिससे उनकी जो माटी है वो सुधर सके, या जो रोटेशन वाली जो फार्मिंग है, जो रोटेट क्रॉपिंग है, वो कैसे की जा सकती है?
जो रोटेशन क्रॉपिंग है आपका, जो फसल चक्र है, उसमें सबसे पहले जो जैसे कि गहरी जड़ वाली फसलें बोते हैं, उसके बाद हम लोग मतलब उथली जड़ वाली फसलें बोएं, जिसमें जैसे कि इस साल ज्यादा चाहने वाली फसलें, जैसे मान लो किसी में 4 पानी लगते, मान लो गेहूं है, गेहूं कटने के बाद आप मूंग कर सकते हैं, कम जी। पानी वाली फसल कर सकते हैं, और दलहनी फसल तो करना ही करना है। एक साल छोड़ के दलहनी फसल तो 100% करना है, क्योंकि जो राइजोबियम होता है इसकी जड़ में, दलहनी जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है वातावरण से, इसमें जो है जड़ में के राइजोबियम होता है जो नाइट्रोजन को एकत्र करके जमीन में मिलाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बैक्टीरिया जो हमारे लोगों के, तो इससे भी जो है सॉइल का काफी हेल्थ का सुधार होता है। लेकिन किसान क्या करता है कि इस साल भी गेहूं करेगा, अगले साल भी गेहूं करेगा, तो उससे कहीं ना कहीं जाके अपने सॉइल को बड़ा खराब इफेक्ट है। और ये आपका ये जो फर्टिलाइजर का अनबैलेंस, जो हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इससे निरंतर जो है सॉइल की दशा खराब हो रही, कि जो जितने अपने मित्र माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं, केचुआ है, अर्थवर्म वगैरह, तो ये सब भी नष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। नष्ट क्या हो रहा है कि एक तरीके से ये विलुप्त ही हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी सॉइल का बड़ा नीचे जा रहा है। जी। और सॉइल का सुधार तभी होगा जब किसान अपना क्रॉप रोटेशन अपनाएगा। फसल चक्र जब तक नहीं अपनाता है तब तक मुझे नहीं लगता कि सॉइल में सुधार हो सकता है। क्रॉप रोटेशन मस्ट है। जी। जी। शायद डॉक्टर पुनीता आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। हाँ, एक प्रश्न मेरा है कि जैसे आप ये वाटर कंजर्वेशन आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ क्या राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में भी किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, वहां जहाँ के लिए भी, पे राजस्थान में भी इस सॉइल कंजर्वेशन का डिपार्टमेंट है, और वहां पे भी काफी स्कीमें चल रही हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए। और वहां भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना अंतर्गत कार्य वहां भी चल रहा है राजस्थान में। आई थिंक मुझे उतना जानकारी नहीं है राजस्थान के विषय में, लेकिन वहां भी काम चल रहा है, क्योंकि सॉइल कंजर्वेशन का डिपार्टमेंट हर स्टेट में है। और ओके। वहां पे हम लोगों का टोटल काम वाटर हार्वेस्ट। डॉक्टर पुनीता आप, जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी। तो मिस्टर मिश्रा, डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क फ्रॉम देवेश तिवारी? मुझे काफी अच्छा लगा, सर ने काफी जानकारियां हमारे साथ शेयर करी, और बुंदेलखंड के बारे में जो उन्होंने बताया उसको जान के मुझे बहुत हर्ष हुआ। बुंदेलखंड, चूंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ, और बुंदेलखंड के बारे में जो हमारी, चूंकि मेरी तो कल्पना ही है क्योंकि मैं उधर गया नहीं आज तक, तो जो मैंने अभी तक सोचा था वो यही था कि यूपी का सबसे पिछड़ा और गरीब इलाका है वो। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे अगर सरकारी कर्मचारी वहाँ प्रतिनियुक्त रहेंगे और आगे काम करते रहेंगे तो वहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, त्रिपाठी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बधाई है। थैंक्स सर। वेलकम जी। तो मैं हर एक स्टेट में उस स्टेट के अकॉर्डिंग योजना या फिर जो भी ये आपकी जैसे कंजर्वेशन के मेथड्स हैं वो उस स्टेट के अकॉर्डिंग शायद उस स्टेट की काउंसिल या उसका जो भी हेल्थ सेंटर होगा वो ज्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्योंकि ऐसा होता कि जो योजनाएं होती कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं रहती हैं। अब जैसे कि हमारे यहाँ जो योजना चल रही वो राजस्थान में नहीं चल रही होगी,
अब जो राजस्थान में क्या है कि उधर तो मैं कभी गया भी नहीं हूँ, लेकिन वहां पे सॉइल पे काफी काम हो रहा है। वहां को तो लोकली में बता सकते हैं लोग। जी, तो डॉक्टर पुनीता, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो मैं इस सेशन को यहीं पे अब समाप्त करने की कोशिश करना चाह रही हूँ, और मुझे आशा है कि आज का जो सेशन है वो हमारे दर्शकों के लिए लाभदायक रहेगा। और जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इस पूरे सेशन में, मैं बस उनको थोड़ा सा एक कंक्लूजन देना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, ना सिर्फ इन्वॉल्व करें, उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको दिखाएं हम कि भाई क्या किया जा सकता है, उनकी हैबिट्स में हम ले करके आए। देन रोटेट फार्मिंग, रोटेट क्रॉप जो है वो हम इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें। एंड देन मिस्टर कीर्ति प्रसून रियली वाज वेरी राइट व्हेन ही सेड कि हमको थोड़ा समय जा करके अपना फार्मर्स के साथ में बिताना चाहिए। इससे ना सिर्फ हम अपनी नॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, बट साथ में हम उनकी प्रॉब्लम्स को जानेंगे तो शायद हम उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, और जब हम ज्यादा बात करेंगे तो हम उनके सॉल्यूशंस भी ढूंढने में उनकी सहायता कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी नागरिक गांव से नहीं आया है। हम सब की जड़ें गांव से ही हैं, और हम सब जानते हैं कि फार्मिंग क्या है। बट बस यही है कि सब बीतते समय के साथ में हमारा जो रिश्ता है गांव से, खेत से, खलियान से और माटी से, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। तो बस उसी को वापस याद दिलाने की और वापस उससे रिश्ता बनाने की हमें आवश्यकता है। हम सब फार्मर्स की फैमिलीज को ही बिलोंग करते हैं, मोर और लेस। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया और अपने जो नॉलेज है हमसे शेयर करी। जो भी जानकारी आपने साझा की उससे हमारे दर्शकों को ज़रूर सहायता मिलेगी, और आने वाले समय में हम चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ऐसे प्रोग्राम्स और कंडक्ट करें, और ना सिर्फ बातचीत करें, बट सच में हम एक्शंस में भी आए। हम एक प्लेज ले पाए अगर कि हमको 1 महीने में 1 पेड़ तो लगाना ही है, अगर 1 में नहीं तो 3 महीने में 1 पेड़, 3 महीने में तो नहीं तो 6 महीने में 1 पेड़, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो अपने हर जन्मदिन पे तो हम ऐसा कर ही सकते हैं। और ऐसा करने पे सिर्फ उसको उसमें हम बीज ना बो दें, हम जा करके उसको चेक भी करें। उस जैसे हम बच्चे को पालते हैं उस पेड़ को हम पालें, हम जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि अंततः मिट्टी ही है जहाँ से हम आए हैं और मिट्टी ही है जहाँ हम मिल जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। मेरा नाम मनीषा शर्मा है और आप देख रहे थे टॉक शो ऑन ज्ञानांजलि। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। Thank you.